हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज हमारे इस सक्सेस स्टोरी के अंदर जो मेहमान हैं, गेस्ट हैं, वो है मिस फाइजा रहमान, जिनका रिसेंटली जो सिडबी ग्रेड ए पोस्ट यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है सिडबी रिक्रूटमेंट 2022 के तहत। तो हम फाइजा से बात करेंगे, ठीक है, जानेंगे उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस जर्नी के दौरान, और उनकी सफलता के अंदर किन किन रोल्स की ज्यादा भूमिका थी, उन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फाइजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में, एंड हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you so much for having me here. Thank you. वेलकम। तो सबसे पहले फायदा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और अगर आप जॉब में थे तो आपका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिएगा। I have done my schooling from Sophia Girls School, Meerut. For graduation, I went to Lady Shri Ram College. It's in University of Delhi. I have done my graduation in economics and maths. My rank has been second there. For masters, I went to Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. I have done my masters with silver medal in gender studies or women's studies. Job, I have not done any formal job, but I have done volunteer work and internships over a period of time. एंड मैं अभी करंटली ड्यूरिंग द फेज वेयर आई वाज प्रिपेयरिंग मैं ट्यूशंस भी पढ़ा रही थी। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट जॉब है। हाँ जी। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि करंटली आपको सीडबी की प्रिपरेशन करनी है, या इससे पहले आप किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, लाइक आरबीआई ग्रेड बी या यूपीएससी, या किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान आपका ध्यान इसकी तरफ गया, या आपने इसी को चूज किया कि मुझे सीडबी करना है, और अगर करना है तो वाई सीडबी? I have been preparing for other examinations also. I have written mains for SBI and IBPS PO. I've also cleared RBI assistant mains. Apart from that, I did write other examinations as well. So my target was to go into government examinations and regulatory body. I have also written mains for RBI Grade B. The idea was to get into a job that is more secured in terms of like when I'm entering into the job force, I have a security. So the idea was that in my head. SIDBI actually notification came out of the blue, like it came after years. So I was like, let's give it a try because the syllabus or pattern is very much at par with what I was preparing for SBI mains and IBPS mains. So I thought, let's give it a try. So that's how I got into I planned to write SIDBI. ओके, दैट्स गुड। और आपकी पहले ही एग्जाम में इतनी बड़ी सफलता, रियली आप बधाई के पात्र हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्हें जैसे जैसे वो ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद उन्हें डिसाइड करना मुश्किल होता है कि उनको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो आपने बैंकिंग एग्जाम्स को ही क्यों चुना कि मुझे इसी सेक्टर के अंदर जाना है? और फिर सिडबी में आपको क्या ऐसा लगा कि मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ये मेरे लिए फार बेटर होगा? या सिडबी आपकी आखिरी सीडी है, इसके बाद आपको किसी दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, या आपको लगता है कि नहीं अभी बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ और मुझे इसी में मजा आ रहा है बस? For the first part, the reason why I wanted to write bank examinations is because if you see my master's and my graduation is in economics and maths, and my master's is in gender studies. And if we see currently, there's a focus on women getting into the financial sector in terms of not just employment, but also as having more women as account holders. So in terms of financial inclusion per se. So my basic idea, I was actually reading during my master's, we had a subject on microfinance and it was very interesting. I did conduct a small study on microfinancing as well. So from there, I had this intuition that maybe I should give it a try. It could be something that I would be interested in because मेरा economics के interest भी cater होगा and मेरा gender में जो interest है वो भी इसमें cater हो जाएगा. SIDBI was actually very interesting when I read about it because microfinancing is a very important part of SIDBI. And when I was reading about SIDBI or various reports that I was going through about SIDBI, microfinancing ka part, it was reflecting my part or memories that I was thinking about when I was in my master's and how women were negotiating with patriarchy. They were actually making use of these institutions. So it was very interesting to me. And that's how SIDBI happened. That's how the interest actually developed all the more into SIDBI.
ओके, बेसिकली आपने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे उसी के इंटरेस्ट के बेस पे अपना जो जॉब है उसको भी सेलेक्ट किया। तो आपने जस्ट अब 2021 के अंदर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी मास्टर्स कंप्लीट की, और जस्ट उसके बाद आपको आपका जो सिलेक्शन है वो सिडबी में हो गया। तो इस दौरान आपको कोई हार्डशिप भी फेस करने को मिली, या हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? See, I actually come from a humble background. I was at home, so there were always these pressures that I had to do some work, and at the same time, I wanted to be financially independent. So I was also giving tuitions. So these were the small struggles, but I also think that these were also the motivators that were keeping me motivated to get the job as soon as possible. So I think these struggles were more like motivational objects or motivational parameters for me, that no, you have to clear it. And also the fact that I wanted to get stabilized in a way that I don't want to, run a lot into giving and writing examinations. It's also very tiring, writing three, then mains, then going for interview. Already I was So rejected. many steps are there. Yes, it was kind of triggering after a point. So I was very clear that no, ab to karna hi hai isko. So I gave my all in this interview specifically, and yeah, that's it. And it just happened. ओके, तो आपका सोर्स ऑफ प्रिपरेशन क्या रहा इस दौरान? आपने कहा कि इससे पहले मैंने आरबीआई ग्रेड बी का मेंस भी दिया है, अदर बैंकिंग एग्जाम्स भी दिए हैं, तो सिडबी के अंदर कोई ज्यादा फेजेस नहीं थे, जस्ट आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर था, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर था, एंड आफ्टर इंटरव्यू गॉट सेलेक्टेड। तो ये क्या जो यहाँ पे क्यूआरई वाला पार्ट पूछा गया या जीए वाला पार्ट पूछा गया, क्या आप में आपको इसमें हेल्प की आपके आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन ने, या जो आप अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे वही वाला क्यूआरई आपके यहाँ पे भी काम आया? वही वाला ईएसआई का एक पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा था सीडबी के एग्जाम के अंदर, तो वो वाली प्रिपरेशन काम आई या आपने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया? और आपका सोर्स ऑफ प्रिपरेशन क्या रहा, ये हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए। The source, yeah. So basically, as I've mentioned, मैंने SBI mains भी लिखा था and IBPS mains भी लिखा था. So I was covering GK, general awareness since September. So September से लेकर मेरा February तक current affairs इन दो एग्जाम्स की वजह से ऑलमोस्ट हो रहा था, because IBPS का इंटरव्यू February में था, if I remember it correctly. उसकी यहाँ तक मेरा हो गया था. फिर मैंने बीच में भी बाकी एग्जाम्स जो थे, जैसे कि RBI assistant वगैरह के लिए भी I was preparing simultaneously, and I was also very prepared that I have to write grade B. So ASI के लिए I was referring to grade B वाला part only. I had EduTap का material for that. So स्किम स्टेप ये वो सब yes, चीजें पढ़ी हैं आपने? yes, I was ओके, specifically focusing on scheme tab and the GA part also. I used to give EduTap में बहुत सारे quizzes होते हैं. हाँ, So to make sure that I give all the quizzes, because वो बहुत concise होते थे, and it used to help me retain what I'm reading. So quizzes पे मेरा बहुत ज़्यादा focus होता था on current affairs. Apart from that, QRE के लिए मैं other sources जो YouTube पे बहुत सारे channels available हैं, मैं उनको refer करती थी. And mocks were very important. I think mocks and analysis used to go hand. ओके, तो फेज जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर था उसमें आपका फेवरेट सेक्शन जिसमें आपकी रुचि ज्यादा थी और आपने स्कोर भी अच्छा किया? I had two particular sections. English, क्योंकि इसमें थोड़ा command comparatively, I had a better command in descriptive and in objective paper. Apart from in per se objective, it would be English and reasoning. Reasoning में मेरा थोड़ा ये होता है कि I used to score better in reasoning comparatively, and English I somehow it just happens कि मेरा English में अच्छा score आ जाता है. So probably the education background was helping me a lot here. So these were the two sections that I would be focusing more on. तो जैसे क्यूआरई वगैरह है, जीए के लिए तो आपको होता है कि आपने नोट्स बना लिए होंगे, तो आपको लगता है कि रिवीजन कितना ज्यादा जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए, और रिवीजन के लिए वो किस तरीके से अपनी तैयारी करे? क्या वो अपने नोट्स बनाए, या वो कोई कुछ फॉर्मूलाज किसी बुक से पढ़ करके रिवाइज करे, या प्रैक्टिस के लिए वो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज दे? I think it's very subjective, but for me, what worked was that I used to write everything, be it current affairs. Like if I'm referring to any source, be it newspaper or scheme tab or anything, I used to write it. So I used to make registers, and I used to write everything that I was reading. And while revising, I used to highlight them a lot, because when I was highlighting, it was getting imprinted in my brain also. And how I used to prepare for current affairs and GA. For QRE,
for there would be some questions जो मुझसे perform बिल्कुल नहीं होते थे, and you get to know when you are practicing बहुत ज़्यादा, you get to know कि आपके साथ ये एक chapter है जो आपका थोड़ा weak है, तो मैं try करती थी कि उसको सबसे end के लिए छोड़ूं, ठीक है, तो मेरे अच्छे concepts होते थे उसको मैं सबसे पहले करती थी, and I used to see कि topper जो जैसे मैंने mocks दिए तो उसमें टॉपर ने कितना टाइम लिया, एंड आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं टाइमर लगाकर उसी उतने ही वक्त में वो सॉल्व करने का ट्राई करूं. दैट हेल्प मी अ लॉट, मतलब उसकी वजह से मेरी स्पीड बहुत तेज हो गई थी, प्रिपरेशन में अच्छा परफॉर्म करने लगी थी. तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी पार्ट था, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया? फोल्डर मटेरियल आपके ने आपकी बहुत काफी हेल्प की, आपकी एक टाइपिंग स्पीड का भी इश्यू आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो इसकी प्रिपरेशन आपने किस दौरान स्टार्ट की और प्रैक्टिस आप कितना कितना टाइम प्रैक्टिस करते थे आप? आई थिंक आई वुड थैंक माय मास्टर्स फॉर दिस. हम लोग को थीसिस लिखना होता है फॉर मास्टर. So I was writing my thesis since January to July. I was just writing on computer. So that a lot of typing was not an issue for me. Regarding the points or the material, मैं क्या करती थी, जो जो important topics होते थे, like you know that there are certain topics जो थोड़े important होते हैं comparatively. मैं उन पे थोड़ा ध्यान देती थी, मैं सारी रिपोर्ट्स देखती थी. फॉर एग्जांपल जेंडर गैप रिपोर्ट कितना आ जाता है, या कोई हंगर रिपोर्ट कितना आ रहा है, उसमें इंडिया का कितना इंडेक्स, उस इंडेक्स में इंडिया का कितना रैंक है, उसके ऊपर फिर फ्रेमिंग करती थी. एंड आई नेवर रोट एन एंटायर एसे अंटिल एग्जाम में 5 दिन रह गए. इन दैट लास्ट 5 दिन आई यूज्ड टू राइट प्रॉपर एसे इन द गिवन टाइम फ्रेम. बट उसके अलावा मैं क्या करती थी, मैं पॉइंटर्स लिखती थी, और मैं कभी मतलब आई नेवर यूज टू डू कि न्यूज़पेपर में देखा है एंड देन राइटिंग कर रहा है. नहीं, आई यूज टू राइट माय ओन पॉइंट्स एंड गिव इट टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स टू रीड दैट हाउ इज इट. आई थिंक फॉर मी इट वर्क टू हैव, I had 2 to 3 people who were helping me a lot in terms of descriptive. हम लोग शेयर करते थे अपने essays एक दूसरे के साथ, so that really helped me a lot. So ओके तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के बाद अगर हम बात करें जीए की, जीए में बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि काफी वाइड रेंज है, करंट अफेयर वाला पार्ट है, ईएसआई वाला पार्ट था, स्टैटिक प्रिपेयर करना है, तो व्हाट वाज योर टेक ऑन जीए? कौन से टॉपिक आपको ये लगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये किसी भी स्टूडेंट को जरूर रीड करने चाहिए? सो फॉर सिडबी में एमएसएमई वाले पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि अभी एमएसएमई गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फोकस है. तो जो भी एमएसएमई से रिलेटेड न्यूज़ होता था मैं उसको अलग ही लिखती थी. आई हैड मेड अ स्मॉल कॉपी, उसमें एमएसएमई का रिपोर्ट्स में सारा अलग से लिखती थी, जो भी डेटा था. सिडबी का एनुअल रिपोर्ट था एक, वो आई रेड इट फॉर इवन जो रिटन एग्जाम था उसके लिए भी आई रेड दैट एनुअल रिपोर्ट, बिकॉज यू नेवर नो क्या क्वेश्चन आ सकते थे. एंड फॉर करंट अफेयर्स मैं रोज ही रीड करती थी करंट अफेयर्स, उनको लिखती थी रोज, एंड मैं अगले दिन उन्हें रिवाइज करके क्विज देती थी. सो दैट मी अ लॉट रिटेन करने के, एंड देन सैटरडे संडे आई यूज्ड टू रिवाइज पूरे करंट अफेयर्स. ओके तो आपने आपने बताया कि पहले आपने एसबीआई पीओ मेंस भी दिया, आईबीपीएस पीओ मेंस भी दिया, इससे पहले आपने आरबीआई ग्रेड भी दिया, तो व्हाट हैज बीन लर्निंग फ्रॉम योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स कि वहां आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या सीखा आपने उनसे कि ये गलती मुझे दोबारा से नहीं दोहरानी है? I think interview was something that I was lagging a lot, and मैंने क्योंकि कभी कोई mock वगैरह नहीं लिया था interview के, तो I was not able to understand where I'm lagging. So it EduTap के I went for a mock session EduTap के under, and वहाँ पे sir and ma'am told me कि मेरी क्या क्या problems हैं. For example, the way I communicate myself is clearer, but I need to be very specific on what I'm speaking. So वो चीज़ मुझे काफी काम आई. Maybe that's what the loophole was in SBI and IBPS. Apart from that, उन्होंने मुझे बताया कि आप कौन कौन से सोर्सेस से पढ़ सकते हो. लाइक आई रिमेंबर सर टेलिंग मी कि 3 बकेट्स बनाओ और उन बकेट्स में अपने बारे में पढ़ो, करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ो, सिडबी के बारे में पढ़ो. अगर आपने ये 3 चीज कर लिया, गुड टू गो, आपका इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. सो दीज वर द स्मॉल थिंग्स जो मुझे पता ही नहीं था, वो गाइडेंस ही नहीं था. सो दैट रियली helped me a lot. That mock interview was actually a good to go strategy for me कि वहाँ से मुझे पता चला how to strategize and go ahead for the interview. ओके, कमिंग टू द इंटरव्यू, मैं ये आपने हमसे शेयर किया कि आपने एडुटेप के मॉक इंटरव्यूज भी दिए, तो इससे पहले क्या आपने आईबीपीएस की जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे या एसबीआई की कर रहे थे तब आपने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था? नो, आई वॉज नॉट इवन अवेयर. मतलब मुझे मेरा अवेयरनेस थोड़ा इस सब में ये था कि ये तो हो जाएगा, इंटरव्यूज तो आप क्लियरली कर लेते हो, यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. आई डिड नॉट नो द what exactly to say. So IBPS and SBI के टाइम पे I was
confident कि मैं खुद कर पाऊंगी, हम्म, not work in my favor. So I went for a mock interview for SITB examination. ओके। तो आपका एडोटाइप के मॉक इंटरव्यू के दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसने आपके रियल इंटरव्यू में कितनी हेल्प की, ये हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे? It was actually very good and sir ने मुझे specifically कुछ चीजें बोली थी to read. For example, मैं economics background से हूँ, तो he told me कि inflation के बारे में अच्छे से पढ़ के जाओ because अभी inflation बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस पे questions आएगा. And as soon as I entered the hall, the first question that I was asked was, what is inflation? And I remember क्योंकि sir ने specifically बोला था, तो I read a lot about inflation, what the current status is. I read a lot about it. So मैं वहीं पर एकदम बोल कर आ गई. He helped me a lot. Apart from that, sir told me कि अपने बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना. So एक सर थे पैनल में, उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट डज योर नेम मीन, तो वो सारी चीजें मुझे फ्रेमिंग बहुत अच्छे से हो चुकी थी उसकी वजह से, बिकॉज मैं स्पेसिफिकली करके गई थी इन सब चीजों पे. तो दैट रियली हेल्प मी अ लॉट. ओके, तो इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर्स का जो पैनल था उसका फोकस किस एरिया पे ज्यादा था? आपसे अपने बायोडाटा फॉर्म से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, या आपसे करंट रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, या एमएसएमई सेक्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए? तो इंपॉर्टेंट एरिया जहां इंटरव्यू के दौरान ज्यादा फोकस रहता है वो शेयर करिए प्लीज। For me, it was more on my educational background. First ओके। of all, मेरा मास्टर्स किस चीज में है, बिकॉज हम्म। स्टडीज इज समथिंग जो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बट एट द सेम टाइम पीपल आर लाइक what subject is it? So there was a 5-minute conversation about what women's studies is, and then there were continuous questions on how are you going to contribute to SITB, like how are you going to perform better, how are you going to be an asset to SITB अगर आप सिर्फ women's studies पढ़कर आए हो. And my main focus was on micro financing only. So उससे related उन्होंने मुझसे काफी क्वेश्चंस पूछे कि माइक्रो फाइनेंसिंग में आपने स्टडी किया है, तो व्हाट एग्जैक्टली योर स्टडी वाज. तो इस सब से रिलेटेड काफी फोकस था. एंड देयर वर वन सर जो मुझसे सिर्फ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछ रहे थे, लाइक ही वाज आस्किंग रेपो रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, टूल्स क्या है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के. तो was only on academia. There was a psychometric test in SITB, उस पे भी क्वेश्चंस थे मेरे से. ओके। आप आपकी साइकोमेट्रिक टेस्ट में ये चीज आ रही है, तो आप इस पे क्या आपका से है. सो एक पैनलिस्ट ने स्पेसिफिकली सिर्फ इस पे फोकस किया था. सो देयर वर टू मेन फोकसेस, एजुकेशनल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट. ओके। ओके, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कितना स्कोर मिला, कुछ शेयर कर सकते हैं इंटरव्यू के दौरान? My overall score is 73.08. If अगर जो लिस्ट के हिसाब से रैंकिंग है, so it's 14. ओके। And so interview was actually very good. It was, I understood myself better. मैं थोड़ा काम होना सीख रही हूँ अब. Like SBI I was very much like हो जाएगा, बहुत हल्के में लेने वाला बात होता है. But here I was more serious. I understood myself. I became more calmer in sense कि हाँ, सोच समझ के आंसर दे रहे हैं, बहुत सेफर स्टेप्स लेके आप आंसर दे रहे हो. सो या आई लर्नड अ लॉट in this whole phase, so that really helped me a lot. और पैनल में मुझे नजर आ रहा था the way they were responding, the way they were smiling when I was answering to what I'm saying, the way they were accepting my answers body language से. तो yeah, it was making me more confident in some. चलिए, अच्छा रहा और फाइनली आपने इसको अचीव कर लिया है. तो एक जो स्टूडेंट होता है जब भी वो अपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है अपनी इस जर्नी के दौरान, उसे बहुत सारे स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है. अगर उसे एक एग्जाम में सक्सेस नहीं मिली तो उसे वही चीजें, कुछ हो सकता है कि फैमिली की तरफ से भी प्रेशर आना शुरू हो जाता है, कुछ सोशली लोग भी ताने देना शुरू कर देते हैं, या एक स्टूडेंट को बहुत सारे स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है. तो आपके पास कोई ऐसा स्ट्रेस बूस्टर था जिसने आपकी हेल्प की हो? My family is my biggest support. Like, would say that I'm very privileged to have a family where my mother, my father, my brother, my sister, they have always been a very constant support to me. कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, वाईफाई इज नॉट वर्किंग, फोन लाके नया दे दिया, बिकॉज they knew that I am giving, like I used to study a lot. There were days when I used to sit at 8 a.m. मैं सिर्फ खाने के लिए उठती थी, and I used to get up at 10 a.m. तो they were seeing that हाँ बच्ची बहुत मेहनत कर रही है. And then SBI IBPS हो गया था, तो हम लोग के यहाँ like in my family also किसी ने ऐसे एग्जाम्स दिए नहीं, तो for them it was a very big achievement कि बच्ची का निकल रहा है एग्जामिनेशन. They were very supportive. And अगर कभी भी ऐसे होता था मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो I used to tell my father कम मार्क्स आए हैं, तो वो समझाते थे कोई नहीं, it's a bad day, but रोज ऐसे नहीं होगा. He used to
with me at 5 o'clock at times. जब 8 बजे के लिए पढ़ना होता था कि 8 बजे उठना है, मॉक देना है, तो he used to get up at with me at 5. चाय बनाकर देते थे कि आप पढ़ो अच्छे से, I'm here sitting, नींद ना आए, you need someone to sit by you. So वो चीज I had been very privileged कि parents have been very supportive. इसीलिए पेरेंट्स को भगवान का दर्जा भी हम लोग देते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा रहा फाइजा। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, एक आजकल एग्जाम्स होने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक एग्जाम में सफलता नहीं मिलती, शायद दूसरा एग्जाम जब आता है तो उसमें बीच में काफी सारा गैप हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन, कि एक स्टूडेंट को कम से कम इतना वेट तो करना ही चाहिए, उसे बहुत जल्दी हिम्मत नहीं हारनी है? फॉर मी, मैंने लास्ट ईयर सारे मतलब मैंने SBI, IBPS एंड RBI लिखा था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो प्रेशर होता है एग्जाम का, वो मैं बिना पढ़े लिखकर आई थी। फॉर दिस ईयर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन सितंबर, लाइक मेरा मास्टर्स खत्म हुआ है इन जुलाई, एंड फ्रॉम सितंबर आई बिगैन माय स्टडीज वेरी सीरियसली। मैं रोज मॉक देती थी 3-4, मतलब मैं 2 मॉक्स शुरू में देती थी एंड तब मेरा स्कोर बहुत खराब आता था, तो इट वाज वेरी डिमोटिवेटिंग, इतना कि आई यूज्ड टू थिंक कि मुझसे तो होगा ही नहीं ये, मतलब I remember my first mock and I got 32 percentile and I cried and I was like I'm not going to write this examination, होगा ही नहीं मुझसे। But then thankfully I also met really amazing people during this preparation who were constantly telling me नहीं, it's just first mock, you will learn, you will, एंड वो ही लोग थे जो मुझे 32 से 99 परसेंटाइल तक के में हमेशा मोटिवेट करते रहे थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मुझे चीज लगती है जो टाइम होगा वो थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, मतलब आप देखिए सितंबर से सारे फॉर्म्स आ रहे थे, NIACL आया, फिर SBI आया, आई थिंक फॉर्म्स आते रहते हैं, इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट अवेयर कि कितने फॉर्म्स होंगे। आई एम श्योर अगर मैं टेलीग्राम नहीं यूज कर रही होती, मुझे सिडबी के बारे में नहीं पता होता, बिकॉज रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है बहुत बच्चों के लिए। उसके अलावा आई थिंक यू शुड टेक 1 or 2 years, पहले साल में तो समझ ही आता है कि कौन से रिसोर्सेज यूज, लाइक मेरे लिए मुझे नहीं पता था व्हाट रिसोर्सेज आई शुड यूज, आई स्टार्टेड बाय हिट एंड ट्राइंग मेथड। SBI में चलो ये रिसोर्स काम नहीं करा, IBPS में ये रिसोर्स यहाँ काम नहीं किया, बट वही चीज फिर जब थोड़ा चेंज किया वो सिडबी में काम किया, तो आई वुड सजेस्ट दैट अपना खुद का रिसर्च करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट गो ऑन पीपल के, किसी ने कहा ये यूज करो वो यूज करो, डोंट गो ऑन इट, अपना खुद का एक बार पढ़ो, सबका अपना तरीका है, focus on your method only, and there are going to be a lot of negative people, choose the positive ones, लोग people are going to tell you नहीं हो पाएगा, लोगों का काम है कहना। take your own time and prepare, like whatever it is, if you're scoring bad, no matter how thake you are, पढ़ना जरूरी है, like make sure that you study 2 to 3 hours irrespective of how busy your day is, that is going to definitely help you a lot। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो आपको अपनी कंसिस्टेंटली जो एफर्ट्स हैं उनको जारी रखना पड़ेगा, और थोड़ा टाइम लगेगा बट निश्चित रूप से एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई फाइजा आपको अपनी इस उपलब्धि के लिए। तो एट द एंड कोई ओवरऑल मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें कि आपको इन चीजों पे फोकस रखना है, और कोई भी ओवरऑल मैसेज आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए? I would suggest कि it is very important, something that I did, I took it very grantedly for SBI and IBPS. Please do not take, like focus a lot on interview because mark important है. Just make sure एक mark important है. You make when you are writing or taking the answers, know that आप गलत कर रहे हो तो आपका 1.5 नंबर या 1.25 जाएगा. Just calculate it in mind. आप खुद ही बहुत आपका accuracy बढ़ने लगेगा. And if your is good, you're focusing on interview, you're good to go. Don't consider कि पहले pre कर लूँ फिर mains करना है. Take both into consideration simultaneously. That is going to help. ओके, तो थैंक यू वेरी मच फाइजा। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे व्यूअर्स को आपके इस स्ट्रेटेजी से बहुत फायदा मिलने वाला है, और उनको भी एक दिन सफलता जरूर मिलेगी अगर वो अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंटली जारी रखते हैं। तो अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन फिर से, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू वेरी मच फाइजा। Thank you so much for having me on board. Thank you. थैंक यू।